class. This is my simple profile. I'm Ghulam Mushtaba, assistant professor in Zabul at law. My qualifications are because this is very necessary. Whatever whoever is teaching you, you must know who is teaching you and what is his qualification, whether that person is capable to teach you or not. So I have done LLB, LLM, and thereafter second master. I have done two masters in law, that LLM and master in criminology. Before joining this university, I was member of Hyderabad Bar Association and Hyderabad High Court and Sindh Bar Council. This is my brief introduction. I'm assistant professor law at the Sheikh Zulfikar Bhutto University, Law University, where I taught various courses of law in LLB and BLLB program, and I have impressive and notable career before joining this university in the legal field, with a particular focus on civil law, Islamic jurisprudence, Muslim personal law, and constitutional law. My areas of interest in law and civil and procedure law, criminal and procedure, criminal justice administration, criminology, Sharia law, constitutional law, practice and procedure. And before joining Sheikh Zulfikar Bhutto University of Law, I was concerned, I was associated with the notable law colleges of Hyderabad, and I was also part of various organizations, being a panel advocates, and I have started my career in 2006 in legal field, and I continued till 2017. So that was the brief introduction of my profession. So now this is the course Kanun Shahadat. This is the module 2. Previously it called it law of evidence. This is the week 1 and lecture 1. So what is the purpose and overview of this code, this statute? This is the codified statutory law. That is the Kanun Shahadat 1984 order, which contain the general rules of evidence. It is the successor of the Evidence Act 1872. Its object is to bring the law in conformity with the injunctions of Islam as required by the Article 227 of the Constitution. It applies to the judicial proceedings. The plan of the Act is to perfectly simple. The Act is divided in three main parts: relevancy of facts, proof, and production and effect of the evidence. This code consists of three main parts. Initially, you have learned what are the facts, what are the relevant facts. Thereafter, next phase to how to prove those facts, and how to produce the evidence to prove those facts. And what will be the aim? To teach this course, criminal and civil procedure is incomplete without the law of evidence. Law evidence जो कानून शहादत है, that applies both जो है litigation, criminal and civil. Civil both are different. As we have learned, the criminal जो law है उसका मकसद होता है जो क्रिमिनल से आपकी सोसाइटी को क्रिमिनल से जो है उसको पाक रखना, और जो लोग हैं जो वायलेटर हैं, जो लॉ को ब्रेक करते हैं, उन पे वॉच रखना। अगर कोई वायलेट करता है तो उनको अरेस्ट करना, फिर उसको कानून के जरिए सजाएं दिलाना। ये क्रिमिनल लॉ का मकसद है। इसको हम जजा और सजा का, जो आपके स्टेट के अंदर, आपके मुल्क के अंदर कुछ लॉज हैं जिसकी वायलेशन के अगेंस्ट कोई अगर वायलेशन करता है तो क्रिमिनल लॉ जो है उसकी मशीनरी जो है उसको रोकने में, मुआशरे को क्रिमिनल क्राइम से साफ रखने के लिए ये सारा क्रिमिनल लॉ जो है वो हेल्प करता है। तो क्रिमिनल लॉ का मकसद है जो है क्रिमिनल्स को टू गिव पनिशमेंट दोज पर्सन्स हु कमिट द क्राइम। व्हाट इज द एम ऑफ सिविल लॉ? सिविल लॉ का मकसद जो है आपके लायबिलिटीज या राइट्स हैं उसको एस्टेब्लिश करना। अगर कोई आपके पर्सनल राइट को वायलेट करता है तो इनको इन्फोर्स कराए, वो उसको दोबारा इन्फोर्स कराने के लिए या वायलेशन को रोकने के लिए वो सिविल लॉ जो है दैट विल हेल्प यू। बट दोज both laws will be the incomplete without the law of evidence. Law of evidence is equally important for understanding a variety of subjects in the law curriculum. You cannot learn, you cannot
study criminal and civil law in isolation without studying the law of evidence. Law of evidence के बगैर incomplete है आपका criminal law and civil law. So if you whether you like it or dislike it, कानून की वैसे भी सारे प्रोसीजर आपको पढ़ने पड़ेंगे, सारे कानून समझने पड़ेंगे. You cannot avoid, you cannot ignore the each subject या each provision as you whether you will whether you against your desire, आपकी मर्जी के against आपको भी ये पढ़ने पड़ेंगे. In the law, facts investigation, facts appraisal and articulation are essential skill for a lawyer. देखें, civil law और criminal law you have studied, you have learned, this is the law knowledge, ये knowledge है. लेकिन knowledge is not enough, but the skill is more important. To transform that knowledge in the field of law is different thing, and it is not easy for everyone. You will find lot of LLB holders या lawyers, they call themselves lawyer या advocate, but they will unable to respond to you properly. Fewer from them, कुछ ऐसे आपको एक वकील मिलेंगे या लॉ स्टूडेंट्स मिलेंगे, they will able to transform that knowledge in the field of law. इस लीगल नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, फील्ड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको कानून शहादत समझना पड़ेगा. If you are not good in कानून शहादत and you are not understand fully those articles of the कानून शहादत, you will not able to transform that knowledge in the field of law. The principle of the relevancy and admissibility as well as the essence of the best evidence rule are discussed with the reference to the provision of the Evidence Act and interpretation offered in the decided cases. अभी हम समझेंगे कैसे हम इसको बेस्ट एविडेंस रूल के जरिए इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, और देयर आफ्टर जो उसकी इंटरप्रिटेशन है डिसाइडेड केसेस में बाय द सुपीरियर कोर्ट्स, इसको फिर हम इंटरप्रेट करेंगे. ये हमारा तरीक़ेकार होगा इस कोर्स को समझने का. जो वे ऑफ माई टीचिंग है कि नॉट ओनली मैं आपको कानून शहादत जो है उसके प्रोविजंस, ये इसके स्टैट्यूट्स, उसको मैं बताऊंगा और समझाऊंगा उसके कंटेंट्स क्या हैं, बट विद द एग्जांपल्स और विद द केसेस आई विल मेक यू अंडरस्टैंड जो है इन बेटर वे दोज प्रोविजन ऑफ द कानून शहादत. So after this module, after this course, what will be the outcome of the knowledge of this course? You will have a good understanding of the elementary principle of the law of the evidence as laid down the Evidence Act, and you will have a good understanding of working of the important provision of the Evidence Act, and you will have basic understanding of the engineering of the Evidence Act, and you will have good understanding of the leading cases where important provisions of the Evidence Act have been interpreted by the superior courts, which is Supreme Court and High Court, the doctrine of the court in this particular area of law. So okay, तो स्टूडेंट ये तो था हमारा बेसिक एक इंट्रोडक्शन. आज क्योंकि पहली क्लास है, फर्स्ट वीक है, आप लोगों का तो ये आई थिंक फोर्थ क्लास होगी, लेकिन आपकी मेरे साथ ये पहली क्लास है. तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अवर जो है कोर्स, हमारा कोर्स क्या है और इस कोर्स में इस सेमेस्टर में हम क्या पढ़ेंगे, और इस ये कोर्स जो मैंने पूरा आपके लिए लेआउट डिज़ाइन किया हुआ है. आई विल प्रोवाइड यू ऑल दी स्लाइड्स, विल आल्सो रिकमेंड यू बुक्स, एंड एज वेल एज फॉर दिस एक अंडरस्टैंडिंग जो है कोई भी आर्टिकल जो कानून शहादत का है उसको समझने के लिए केस लॉ भी आई विल प्रोवाइड यू. So without reading the case law, we cannot understand the articles of the कानून शहादत. कानून शहादत जो आपके दूसरे लॉ हैं, जो दूसरे आपके कानून हैं, जिसको हम स्टैट्यूट्स कहते हैं, जिसको हम कोडिफाई लॉ कहते हैं, वो आपकी नॉलेज है, वो कानून की नॉलेज है, उसको हम कहते हैं द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ. लेकिन जो कानून शहादत है, उस कानून की नॉलेज को फील्ड में किस तरह अप्लाई करना है, उसका फील्ड में आपने किस तरह फ़ायदा लेना है, वो आपको कानून शहादत ही बताएगा. उसके तरीके से आप कर सकते हैं. कानून शहादत जो है, लॉ ऑफ एविडेंस है, दैट इज़ द आर्ट. ये आपका आर्ट है, ये आपका स्किल है. विदाउट स्किल, विदाउट आर्ट, फॉर एग्जाम्पल जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. गाड़ी आपको नज़र आ रही है, गाड़ी के कितने पार्ट्स हैं. गाड़ी जो है सिडान है, जो है गाड़ी जो क्रॉस है, या गाड़ी जीप है, या डाटसन है, या बस है, वो फिजिकली आपको नज़र आ रही है.
उसकी आपको डिस्क्रिप्शन का पता है, उसकी व्हील का साइज का पता है, उसमें इंजन कौन सी है, ये क्या है, ये नॉलेज है। लेकिन आर्ट क्या होता है, उस गाड़ी को चलाना होता है, उसकी ड्राइविंग जो है, उसके हर गाड़ी का एक अपना ही एक प्रिंसिपल होता है चलाने का। वो आपका आर्ट किस तरह आएगा, उसको आपको उसकी ड्राइविंग का पता हो, ऑटोमेटिक मैनुअल गाड़ी किस तरह चलाई जाती है, ये स्किल्स हैं। इसी तरह किसी कानून का पता होना, ये एक नॉलेज है। लेकिन उस कोई ड्राइविंग जो है वो कोर्ट रूम में आप जब जाएंगे, जब आप डिसीजंस बनाए, जज हैं तो आप जजमेंट जब बनाएंगे और जब आप केस समझ जाएंगे तो देखिए जज जो है वो अपना विजडम यूज करके वो केस को, पार्टियों को सुन के उसकी जजमेंट किसी एक पार्टी के फेवर में लिखेगा, और वो एक आर्ट है। और वकील जो है वो केस जो है वो कंटेस्ट करेगा विथ रिगार्ड टू दी फैक्ट्स और केसेस के, और वो स्किल उसका यूटिलाइज करेगा फील्ड में। मैं एक चीज आपको इंटरेस्टिंगली मैं आपको आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू वन थिंग। there are lot of your friends, your colleagues, you will meet with them in the field of law in future, but you will find majority of those persons will not able to convey their knowledge, although they are good in law, although they you can say they have they will possess enough knowledge of law, but they will not able to transform that knowledge in the field of law due to lack of skill. They don't know how to use those laws in the field of law. हमें अपनी फील्ड में इन कानून को कहाँ कैसे, अब कानून जो है वो उसको यूज किस तरह करना है, थ्रू इंटेलिजेंस, थ्रू स्मार्टनेस, जो है फिजिकली मेंटली यू मस्ट बी अ स्मार्ट, यू मस्ट बी इंटेलिजेंट, इसको हम कहते हैं स्मार्टनेस। अब ये स्मार्टनेस क्या होती, स्मार्टनेस किस तरह आती है, वो एक स्किल है, वो एक आर्ट है, इसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ एडवोकेसी। अब वो आर्ट ऑफ एडवोकेसी, हाउ यू विल लर्न दैट आर्ट ऑफ एडवोकेसी, थ्रू योर एक्सपीरियंस, थ्रू योर सीरियसनेस, थ्रू योर डिसिप्लिन, and through your tolerance, and through your determination and continuity in your field. अगर आपकी लॉ की फील्ड में यू आर सीरियस विथ योर फील्ड, यू आर वेल इनफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि टाइम पे आपको कोर्ट में जाना है, कोर्ट में अपीयर होना है, टाइम पे अपनी ऑफिस को टाइम देना है, केसेस को स्टडी करना है, जो प्रेसिडेंट्स है, जजमेंट्स हैं, उसको डेली बेसिस पे आपको रीड करना है, दैट इज द डिसिप्लिन। और टॉलरेंस क्या है, चीज़ों को टॉलरेट करना है, समझना है, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। इन चीज़ों के होने के बाद ही आप एक अच्छे वकील या एक अच्छे कानूनदान बन सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर लैकिंग है, यू आर नॉट डिसिप्लिन, यू आर नॉट टॉलरेट, एंड यू हैव नो कंटिन्यूटी, यू हैव नो परसिस्टेंसी, आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, आप एकदम से उसमें जो डिग्रेड हो जाएंगे, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, हार जाएंगे, थक जाएंगे कि ये बहुत मुश्किल काम है, आई विल नॉट एबल टू कैरी दिस वर्क। तो इससे क्या होगा कि आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, और जितना आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे उतना ही जल्दी इस प्रोफेशन से आप जो है बेजार हो जाएंगे। तो इस प्रोफेशन के में वन थिंग कीप रिमेंबर, देयर इज नो एनी शॉर्टकट इन दिस प्रोफेशन। all laws, all codes, all statutes are very much important, whether you like it or dislike it. You have to study all the provisions. अब जिस तरह कानून शहादत में 166 आर्टिकल्स हैं, there are more than say 7 or 8 parts in this code. There are chapters in those in this code. ये सारे चैप्टर्स, ये सारे पार्ट्स, ये सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि नहीं ये आर्टिकल नंबर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये पढ़ लेता हूँ। जितने भी कानून है, all codes, all statutes are interconnected with each other. You cannot read in isolation one code, but you will prefer one code on the other. सारे कोड जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हर कोड दूसरे कोड को सपोर्ट करता है। जो है किसी को आप आइसोलेशन में पढ़ नहीं सकते कि आपकी मर्जी का ये आर्टिकल आपको अच्छा लगता है, वो आर्टिकल आपको पसंद नहीं है। सब आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, हर किसी आर्टिकल का, हर किसी कानून का कोई ना कोई मकसद होता है, और कोई ना कोई उसका बेनिफिट और कोई ना कोई उसकी यूटिलाइजेशन होती है कानून की फील्ड में। So these are the learning outcomes and knowledge regarding this module and this curriculum, this course. So what are the
contents and what are the basic outline of our course. In this journey, what we will learn: title and contents, lay out the course module with list, the Kanun-e-Shahadat, course 2, which is the law of evidence. Initially, we will learn introduction and definitions, and thereafter the exclusion of the oral and documentary evidence and facts which need not to be proved, staple the burden of proof, the examination of the witnesses, improper admission and rejection of the evidence, oath, and miscellaneous topics we will learn in this course. So this is the module. In this course we are going to learn these topics and we will cover, and these all these topics will be covered in the articles 100 and onwards. Article 100 के बाद जितने भी हैं उसमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं, और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स जिस तरह जो आउटलाइन नंबर 2 है द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरल, वो आर्टिकल 101 से लेके आर्टिकल 110 तक जो है वो उसके रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस और नॉलेज कंटेन है वो इन आर्टिकल्स में है. तो इनिशियली अब ये जो डिटेल ऑफ कोर्स आउटलाइन सेमेस्टर जो 1 and 2 है, मैं ये दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन. जो सेमेस्टर 1 के जो आउटलाइंस हैं वो जितनी भी वो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, वो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे, जो राइट साइड की स्क्रीन पे है वो इस सेमेस्टर में वो हम पढ़ेंगे, जिसमें जो है जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. फिर लेक्चर नंबर 3 और 4, जो वीक नंबर 3 और 4 होगा, वो रूल्स रिलेटिंग टू द बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रेजम्पशंस एज टू द डाउरी ऑफ डेथ जो है वो से रिलेटेड होगा. फिर लेक्चर नंबर 5 स्टेपल्स होंगे, उसके काइंड्स होंगे. और वीक नंबर 6 और 7 जो कंसिस्ट ऑफ लेक्चर नंबर 6 एंड 7 पे, जिसमें कंप्लाइंस एग्जामिनेशन एंड चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन. वीक नंबर 7 जो लेक्चर नंबर 7 होगा हमारा, वो लीडिंग क्वेश्चंस, लॉफुल क्वेश्चंस इन दी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा. तो उसके बाद मिड टर्म होगा. फिर मिड टर्म के बाद जो है हम लेक्चर नंबर जो वीक नंबर 8 होगा, 9 होगा ऑब्वियसली, जो वीक नंबर 8 होगा आपका मिड टर्म होगा, वो कंपेरिजन टू आंसर क्वेश्चन पुट टू विटनेसेस, हॉस्टाइल विटनेसेस, इम्पीचमेंट, द क्रेडिट ऑफ द विटनेसेस. उसके बाद फिर वीक नंबर 9 होगा, रिफ्रेशिंग मेमोरी होगा. फिर इम्प्रॉपर एडमिशन होगी. फिर फर्दर जो वीक होंगे उसमें हम जो डिजिटल एविडेंस होगी 164 पे, जो मॉडर्न डिवाइसेस होंगे, ऑन ओथ एविडेंस किस तरह कंडक्ट की जाती है, और लीडिंग जो जजमेंट्स हैं उसको हम फर्दर आगे उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड टुडेज लेक्चर जो है वीक दैट विल डिपेंड अपॉन द वीक नंबर 1 and 2. इसमें हम जो टॉपिक्स के जो कवर करेंगे वो आर्टिकल नंबर 102 से लेकर आर्टिकल नंबर 110 तक होंगे. ठीक है. तो इससे पहले जनरल इंट्रोडक्शन है जो विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आफ्टर पैंडेमिक you keep yourself at homes and a lot of terminologies जो हैं